ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਫॉर ਸਟੱਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਹੈ। We have learnt that the instantaneous rate of reaction is given by the differential rate law equation। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਓਵਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ, ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ A plus B it gives products। ਆ ਸਮਾਲ a ਤੇ b ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ, a ਤੇ b ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਫॉर ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dx/dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ a ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ a ਇੰਟੂ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ b ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ b। ਸੋ ਇੱਥੇ dx ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ डी आर भी ले सकते हैं तुसी, आर रेट ऑफ रिएक्शन। सो डी आर मीनस ਜਾਂ डी एक्स कह लिए, कुछ भी है, चाहे तुसी आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डी एक्स मीनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर चेंज इन टाइम। सो यही इत्थे, क्योंकि जिवें तुसी आ लिखिया सी इत्थे आर, मैं इत्थे पूरा ही लिख दिना, आर इज़ इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। आर मीनस रेट ऑफ रिएक्शन, it is equal to change in concentration of reactants or products over change in time। it is equal to k molar concentration of a raised power a molar concentration of b raised power b। इन इक्वेशन नंबर इत्थे 1 पा लिया जाता है। सो इत्थे कोई साइन नहीं हजे लगाया हुआ। वैसे तुसी पढ़िया पहला कि जो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लैने तो उस समय नैगेटिव साइन लग जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन घटती है। तुसी पिछे स्टार्टिंग के टॉपिक किए, तुसी देख सकते हैं अपनी कॉपी के जरूर। तो जो प्रोडक्ट्स है तो इतने पॉजिटिव साइन ये होंगे, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर चेंज इन टाइम। सो इतने एक्स लिख लिया कॉमन, आर नहीं लिखा या पी नहीं लिखा, आर रिएक्टेंट्स के लिए तो पी प्रोडक्ट्स के लिए। वैसे तुहाडी कॉपी दे विच मैं दस भी देना तुहानूं, जदों नोट्स भी बनवाए सी तुसीं कि किवें तुसीं इहदे विच पहला स्टार्टिंग दे विच टॉपिक कीता। इत्थे तुसीं जे देखो अपनी कॉपी दे स्टार्टिंग दे विच तुसीं आ लिखिया होया R is equal to minus dr/dt, where dr is the change in concentration of reactants, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਲਈ R is equal to dp/dt। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਟ ਲਾ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਟੂ integrated form of rate law by simple mathematics, that is calculus। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होंगी है कैलकुलस, वो की होंगे कि डिफरेंशियल नूं इंटैग्रेशन च कन्वर्ट किया जाता है। इत्थे उही जो है मैथड लगाया जा रहा कि रेट ला की जिहड़ी डिफरेंशियल फॉर्म है उन्होंने ट्रांसफॉर्म मीनस चेंज किया जा रहा इंटैग्रेटेड फॉर्म दे विच मैथमेटिक्स के कैलकुलस रूल के द्वारा। सो द इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस कैन बी डिराइव्ड एज। हुण इत्थे इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशन आपां वक्रे वक्रे ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए डिस्कस करांगे। मेनली वैसे दो तरह के ऑर्डर्स के लिए इंटैग्रेटेड रेट ला एक्सप्रैशन यूज़ किया जाता है, एक जीरो ऑर्डर के लिए तो एक फस्ट ऑर्डर के लिए।
ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट ने ये इंटैगरेटेड रेट ला इक्वेशनस। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ दैट इज़ आर, इट गिव्स प्रोडक्ट्स। आर रिएक्टेंट्स से इन्हों तो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोई भी आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर कर लिया। लेट स्केयर ब्रैकेट आर, स्केयर ब्रैकेट मीनस मोलर कंसनट्रेशन, इज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर एंड के नॉड, के दे पैरां च जीरो पाता इन्हों नॉड कहते हैं, एंड के नॉड इज रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन the rate of reaction does not depend upon the concentration of reactants। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, तुसीं पहला भी पढ़ चुके हैं। देयरफॉर रेट इज़ इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, आ ले लिया आप जिमें हुण तुहानूं मैं दस के हटिया माइनस डी आर, माइनस इस करके क्योंकि कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स की घट रही है। डी मीनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर चेंज इन टाइम, इज़ इक्वल टू के नॉट, के लैने नॉर्मली बट इत्थे आपां नॉट लिया होया पहले ही कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिहड़ा रेट कॉन्स्टेंट है वो के नॉट इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड पावर जीरो, जीरो क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हुण कोई भी टर्म जिहदी पावर जीरो होंदी है उहनूं वन लिया जाता है, सो इत्थे ये बच गया सिर्फ के नॉट। सो आ चीज़ बच गई माइनस डी आर बाई डी टी इज़ इक्वल टू के नॉट। इधर डी टी नूं इस पासे लै गए, आ डी टी इधर, माइनस डी आर इज़ इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी, इनू इक्वेशन नंबर वन पा लिया। सो यदी इक्वेशन वन की हुण इंटैग्रेशन करनी है। नाउ इंटैग्रेटिंग, इत्थे इंटैग्रेशन लिखा हुआ है, इंटैग्रेटिंग, इंटैग्रेटिंग लिख देना TING। नाउ इंटैग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन, इत्थे लिख देना बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। सो दोनों पासे इंटैग्रेशन पा देनी। आ इंटैग्रल का साइन होंदा है, आ देख सकते हैं तुसीं, इंटैग्रल आ माइनस साइन बाहर रख लिया, डी आर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कोई डेरीवेटिव नहीं, कोई इंटैग्रल नहीं होंदा, के नॉट बाहर रख लिया कॉन्स्टेंट, इंटैग्रल ऑफ डी टी। तो इत्थे आ डेरीवेटिव तो इंटैग्रल ये दोनों आपस में कैंसल हो जाते हैं, ये कैंसल हो गए, आर बच गया सिर्फ माइनस आर इज़ इक्वल टू के नॉट, इत्थे भी इंटैग्रल तो डेरीवेटिव कैंसल हो गए, टी बच गया प्लस आई पा लिया, इत्थे इस पासे आई आ जाता, एक इंटैग्रेशन कॉन्स्टेंट लिया जाता, इनू ये ऐड करते होंगे आप, ये रूल होंदा इहदा इंटैग्रेशन का, जो मैथ के जिन्होंने पढ़िया या हुण पढ़ोगे प्लस टू वो जरूर ये बारे डिस्कस करोगे। इनू क्वेश्चन नंबर 2 पा लिया, वेयर आई इज़ द इंटैग्रेशन कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनीशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आई की वैल्यू कहते रिएक्टेंट्स की इनीशियल कंसनट्रेशन तो फाइंड आउट की जा सकती है। हुण इनीशियली रिएक्टेंट्स जिहड़े ने उन्हां दी कंसनट्रेशन तो 100% है। सो उस समय जो टाइम जिहड़ा हजे स्टार्ट नहीं होया, मीनस रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं होया, मीनस टाइम हजे टी इज़ इक्वल टू जीरो है, तो उस समय जोड़े रिएक्टेंट्स ने उन्होंने कंसनट्रेशन फुल होंगी है। सो वो इत्थे आपां लावांगे इनीशियली द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज़, दैट इज़ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ आर, पैरां च नॉट पा लिया, इनीशियली मीनस स्टार्टिंग टाइम के उत्ते, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू जीरो। कहते स्टार्टिंग दे विच जदों रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन अजे फुल है तो उन्होंने आर नॉट ले लिया, कदों लिया जदों टाइम टी जीरो सी। सो इट मीनस आ टी की वैल्यू जीरो इत्थे पुट कर देनी है, तो आर नू आर नॉट पुट कर देना इस इक्वेशन नंबर 2 दे विच। दैन इक्वेशन 2 बिकम्स, इत्थे माइनस आर है, ये आर की बजाय आर नॉट हो गया क्योंकि आ रिएक्टेंट्स की इनीशियल कंसनट्रेशन आर नॉट ले ली, इज़ इक्वल टू के नॉट इंटू टी की वैल्यू जीरो प्लस आई, ये जीरो हो गया के नॉट। सो इत्थे आई इज़ इक्वल टू माइनस मुलर कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट, ये बराबर आ गया। सो आई की वैल्यू जो है फिर इक्वेशन नंबर 2 च पुट कर दी जाती है, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 2। सो माइनस आर आई आ गया, माइनस आर इज़ इक्वल टू के नॉट टी, तो आई की वैल्यू आ गई साढ़े को माइनस आर नॉट। सो इतों के नॉट टी एक पासे रख लिया, आर नॉट इधर जाके पॉजिटिव हो गया, सो इन्हों लिख लिया के नॉट टी इज़ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। तो इतों के नॉट पता करना हो तो टी नूं इहदे नीचे ले जाने, सो ये हो गया आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। सो ये है साढ़े कोल इंटैग्रेटेड रेट ला एक्सप्रैशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लिखा होया दिस इज़ द इंटैग्रेटेड एक्सप्रैशन फॉर, या इंटैग्रेटेड रेट ला एक्सप्रैशन लिखना तुसीं इत्थे इहनूं रेट ला एक्सप्रैशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।